and welcome to a special show called No Filter Cricket. And always we pick up certain topics and try and go into the skin of it. I have my friend C.S. Luthra, who is a highly informed person where cricket is concerned, and his views are pretty divergent. But on the show, we try and maintain a certain decorum, and we always give certain reasons why we are saying certain things. So it's an interesting show to watch, even if I say so. And CS, a very warm welcome to you. Thank you, Arup. So today, the topic of our show is basically on the IPL. Since it's raging everywhere, the IPL 2023. We focus on two teams today, which is the Mumbai Indians and Chennai Super Kings, MI and CSK. So these two teams have dominated the IPL so far in different seasons, and there are a couple of reasons why they've been able to dominate. So I would want to open the show by talking about the four cornerstones. वो चार चीजें ऐसी क्या हैं जिनकी वजह से एमआई और सीएसके इतने सक्सेसफुल रहे हैं. The first point is leadership. The second is grooming and scouting of talent. The third is the core team, which they try and maintain consistency right through, and a very powerful think tank and support system, which helps the players through difficult times, which encourages them, which looks after them, grooms them, and that is why they've become such an important feeder service for the IPL. और इन्हीं चार मुद्दों पे मैं सीएस के साथ आज बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही संक्षिप्त में आपको ये बता दूं कि पिछले 16 सीजन्स में एमआई और सीएसके ने 9 आईपीएल टाइटल्स जीते हैं. एमआई 5 बार, सीएसके 4 बार, और आपस में इन्होंने 4 फाइनल्स खेले हैं. सो आउट ऑफ 16, एमआई हैज won 5 titles, CSK has won 4 titles, and they've played 4 finals between them. CSK have made it through the playoffs in 11 seasons out of the 13, not counting the 2023 season. And that it's only last time they failed to finish in the top 4 was in 2020 and 2022. Last year was quite bad for them. Of the 11 times they have reached the playoffs, CSK have reached the final of the IPL record 9 times, winning the trophy 4 times. So CSK and MI are the dominant forces in the IPL. So CS, let's open the show with some of your reactions on the 4 cornerstones. We'll of course go into more details, but when we talk about leadership, we talk about the think tank, core talent, and the grooming. How important are they in your book? I think most important thing is also the funding. They have never kept any funds with them. They have always tried to, give money to the players and also retaining the players. That is the key for their success. Especially, both these teams, and especially when Dhoni factor comes, when he was the captain, he ensured. Even now, I think it is going to be his last season, by all means, whatever he has hinted. So I think coming back from last year, when Jadeja was trying to till half the season, he was trying to lead, and then team was doing very badly. Dhoni came back. So now this is a time for redemption, for a kind of that he should leave on a very high note. He should leave with a mark on the IPL, which he has already, given there. But overall, I think it is important that the core team, which Dhoni always maintained, whether it was the first season or the subsequent season, he has tried to maintain that 5 or 6 players, always together. If you remember, even Harbhajan Singh initially, when he was in the Mumbai Indians, and when he shifted to, Chennai Super Kings, it was Dhoni's game plan that he has to use his aggression on the field. Whether he was successful or not is a different way. But I think they have managed to give a lot of space and also that creativity that Dhoni brought in with his, with his kind of, captaincy. So Mumbai Indians is a very conservative team. Again, Mumbai Indians is not that flamboyant, but again, their captain is also not flamboyant like Dhoni, but he has his own ideas, especially Rohit Sharma. Ever since he became the captain, I think Rohit Sharma has always maintained that you should play the cricket in a certain way.
But yes, with the players like Kiran Pollard till the last season, I think he always gave them that space to go and hit, in their own way without interfering too much. But yes, the top order, or by leading by example, he always maintained that the cricket should be played in a certain way, and probably not by hitting all those kind of shots which we have seen from other teams. So two different teams, but yes, the core of both the teams, दोनों ने सेम प्लेयर्स को रखा, काफी वक्त तक रखा, और और शायद ये वही इनकी सक्सेस का रीजन भी रहा है। आपने धोनी का जिक्र किया तो अभी मुझे एक ये दो इंस्टेंसेस देखने को मिले तो बड़ा अच्छा लगा कि प्रैक्टिस सेशन में भी जब चिपॉक पे बाहर वो निकल के आए तो वहां पे करीब 20-25 हजार दर्शक उनका नाम चांट कर रहे थे, जैसे ये होता था सचिन तेंदुलकर के लिए सचिन सचिन, अब धोनी धोनी। बहुत उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, और जिस हिसाब से लोग उन्हें चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, ये एक बहुत अहम चीज़ है किसी भी लीडर के लिए, क्योंकि सक्सेसफुल लीडर होना एक बात है, दूसरा है कि सक्सेसफुल भी हो और लोग आपको चाहें, ये थोड़ा मुश्किल काम है, और जो धोनी ने बहुत बखूबी किया है। और दूसरा, जिस हिसाब से फेमस प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने उनके पैर छुए ओपनिंग फंक्शन में, वो खुद ही स्टंट हो गए, धोनी रोकने की कोशिश की, पर वो भी एक मोमेंट था जो बड़ा इमोशनल है कि किस हिसाब से लोग उन्हें चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। अरूप, ये बड़ी अजीब बात है। क्रिकेट, वी ट्रीट द क्रिकेटर्स लाइक रिलीजियस गॉड्स, डेमी गॉड्स, एंड धोनी इज वन ऑफ देम. But I would always say that, unfortunately, even, in the times, if you remember 2014, 15, when his name cropped up in that secret envelope of Supreme Court, where he was kind of, everybody said that his name was there along with other names. And obviously, Gurunath Mayappan, the son-in-law of Mr. Srinivasan and Srinivasan, who is owner of the team, when his name came up, he was arrested. He got the bail, and this entire 3.5 or 4 years long, I would say that drama, because it has not got any yielded result. So it was a drama in the Supreme Court, but that time it used to be very serious matter. So at that particular time, I always thought as a journalist that Dhoni को लोग ना बहुत नफरत से देखेंगे. धोनी इज ए डेमीगॉड. इट्स नो मोर दैट टाइम जब कपिल देव, प्रभाकर रह रहा था, अजहर था, तो उस टाइम पे उतनी गेम में इतना पैसा नहीं था, लोग इतने पागल नहीं थे. मुझे लगा कि धोनी को बहुत धिक्कारेंगे बल्कि उस तरह से, बट नहीं हुआ कुछ भी. धोनी इवन बिकेम मोर पॉपुलर. उसका एक रीजन ये था कि फुल टीम बैकिंग थी. धोनी इज लाइक ए अडॉप्टेड सन टू चेन्नई. धोनी इज ऑल्सो लाइक ए अडॉप्टेड सन टू मिस्टर एन श्रीनिवासन. देर इज अ फैमिली फ्यूड, देर आर अदर रीजंस, वो शायद डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन धोनी इज लाइक ए सन टू हिम. तो ऐसे में जब कंपनी आपने एक तरह से उनको गिरवी रख दी, आपने उनको डायरेक्टर बनाकर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो सब कुछ, तो ही इज वेरी पॉपुलर विद इन चेन्नई सर्कल. His cricket credentials are other. I'm not talking about, I'm certainly not talking about that. But just talking about Dhoni as a person, as a charismatic leader, I think he had that backing of his owner, the entire, जितने भी India Cements की पूरी टीम है. So that's how he dominated that space. उनको लोग कुछ भी कहें, उनको सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह से बात चल रही थी, लेकिन ही ऑलवेज एंश्योर्ड. इवन जब 2 साल उनको बाहर भी कर दिया गया था उनकी टीम को, तब भी उनके नाम पर कोई धब्बा नहीं लगा, जो कि बड़ी अजीब सी चीज है अगर आप सोचें. तो ऐसे में इस लीडर को इतना लिबर्टी देना, टीम का कोर साथ रखना, जडेजा जैसे को अपने साथ लीडरशिप का पाठ पढ़ाना, बेशक वो पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक फर्क पड़ता है कि धोनी का एक अलग करिश्मा है, एक अलग कैरेक्टर है, जिसको वहां के लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं. ठीक है, तो सीएसके इस बाउंसर के बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाते हैं. वो है कंसिस्टेंट कोर, की हर टीम का इन्होंने एक कोर बना के रखा हुआ है, और उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि ये लोग ज्यादा चेंज नहीं चाहते. हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 3-4 ऐसे खिलाड़ी हों जो बैकबोन बन के रहें और मदद करें उस टीम की. उनको फायदा भी हुआ है. So looking at CSK, the core used to be and still is in certain ways Dhoni, Ravindra Jadeja and Ambati Rayudu. When we speak about MI, it is Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, but Jasprit Bumrah is not available in this IPL, as we know, because of injury.
earlier, like CS said, that we had Dwayne Bravo, Karen Pollard, and Harbhajan Singh. Pollard is still involved with MI in a coaching capacity, and Harbhajan's best days are obviously over. Dwayne Bravo is also possibly past his shelf life, although he still saw him play in the Caribbean League. So when we are talking about the consistent course, yes, how much of a benefit does a team have? For example, let's talk about CSK. Now, you mentioned about the conflict with Jadeja. He was made a transitional captain, and it was a disaster. He lost his temper. He fought with Dhoni, and I mean, basically on ground, it was again Dhoni shadowing. So, is it the shadow of a very strong captain like Dhoni, no matter how friendly they are, या वो खुद तैयार नहीं थे? आप इस स्कोर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? You know, when you say that he fought with Dhoni, I don't think that happened. There are Okay. media reports, but again, very conflicting. He you can't afford to, pick up a fight Fight with with Dhoni, Dhoni. person like Dhoni. So it's like that. So, What about Suresh? okay. Would say the same thing in the past? Again, I said, no, Dhoni is too powerful for all these cricketers in terms of Indian cricket also, and when it comes to CSK, he's an adopted son. So there should not be any doubt in this particular thing. So, but yes, keeping the core is one important thing. Even Faf du Plessis, when he was released, after all those years from Chennai, it was called that they had made a mistake, and obviously look at his performances after that. He is doing so well for Royal Challengers. He's leading them also. He's one player who they would be missing a lot, because he was a very powerful hitter, very a thinking cricketer also in the dressing room. But yes, keeping the core and also keeping that faith in those 4 5 players, whether it was Dhoni, Suresh Raina, or Ambati Rayudu. Ambati played almost all his seasons with CSK, or remaining players initially, even Ashwin also. I think Dhoni has maintained that grip on the team, and also he ensured that the players gave their 100% while playing for CSK. There were so many instances initially that players were ready to take even a risk of their injuries, but they used to appear for CSK. और जबकि इंडिया की बारी आती थोड़ा बैठ जाते थे, कोई एनसीए नाम के एक हॉस्पिटल में भी चले जाते थे बेंगलोर में, लेकिन उन्होंने अपनी जो लॉयल्टीज थी दे प्रूव्ड कि वो धोनी के लिए और इंडिया के लिए. उसका रीजन बहुत सिंपल था. Till that time, and Srinivasan was a dominant force in Indian cricket. और उन्होंने भी इंश्योर किया कि सब कुछ भाड़ में गए, हमारी सीएसके, हमारी इंडिया सीमेंट्स की टीम को सबसे ऊपर रहना है. एंड इफ यू रिमेंबर द इनिशियल डेज व्हेन देयर वाज अ कंट्रोवर्सी ओवर फ्लिंटॉफ, इंग्लिश प्लेयर्स, द ग्रेट ऑलराउंडर, उनके ऑप्शन को लेकर किस तरह से ललित मोदी ने खुलासा किया था, कैसे श्रीनिवासन ने रिक किया, कैसे उनकी एक पर्ची है उन्हीं की डाली हुई थी, उनको खरीदना था. So all these things have happened because CSK was the team जिसको हर एक लोगों को जिताना था. सब जो कहते हैं ना घालमेल जो हो रहा था वो उसके लिए हो रहा था. And in between there was a shift when obviously and Srinivasan थोड़ा सा प्रॉब्लम में आए, उनको थोड़ा सा बीसीसीआई से दरकिनार किया गया. उस टाइम पे मुंबई इंडियंस, बिकॉज ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, मिस्टर मुकेश अंबानी, was obviously the owner of this team. So entire focus came to them. Or that's how from Sachin Tendulkar was there even after his retirement when he stopped playing. He was there always in the dugout. He was motivating them, whether he could motivate as a leader or not, because he has proved a complete failure as a captain for India or for other teams. So that's a different matter. But yes, every जो कहते हैं ना, ये हर ईंट हर रोड़ा इसलिए था कि फिर मुंबई को जिताना था. So cricket in IPL is also has a very unique character. इसमें जिस लोगों के पास पावर है, जो लोग थोड़ा सा जो कभी डोमिनेट करते हैं, कभी विराट कोहली का भी आ रहा था, देखिए किस तरह से रॉयल चैलेंजर्स को चढ़ाया गया. तो ये क्रिकेट कहीं ना कहीं प्लेयर सेंट्रिक बहुत ज्यादा हो गया. फुटबॉल भी हम देखते हैं, मैसी हर तरफ हो रहा था, सब चाह रहे थे वो जीते, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी टीम के स्टार्स जो है वो बहुत डोमिनेट करते हैं, वहां पर मैनेजर्स बहुत डोमिनेट करते हैं. बट इन क्रिकेट आई थिंक इट इज 2 3 लीडर्स. और जिस तरह का फोकस लास्ट ईयर से, बिकॉज पावर एंटायरली शिफ्टेड टू अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो अब वहीं के जो कहते हैं उन्हीं के जो अमित शाह जी के बेटे हैं वो वहां पर लीड कर रहे हैं, तो सडनली वो टीम जीतनी शुरू हो जाएगी. अब आप शुरू के 2 मैचेस शुरू के
कुछ मैचेस देखे तो आपको सडनली जो सबसे पावरफुल लीडर लगेगा वो हार्दिक पांड्या लगेगा, तो जो सबसे अच्छा बैट्समैन लगेगा वो अक्षर पटेल लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ शिफ्ट होता रहता है, ये सब कुछ। सो आईपीएल समवेयर इज ए ग्रेट ड्रामा, बट इन दैट ग्रेट ड्रामा, इस ग्रेट ड्रामा में अंदर से क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता, अनलेस एंड अनटिल कभी कोई स्पिल करता है, कोई बीन्स, कोई थोड़ा सा लिख देता है उसके बीच में, और उसको फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, वो एक अलग चीज है। बट इसको क्रिकेट से मत जोड़िए। अगर आपने इसको क्रिकेट से जोड़ा तो आप सबसे बड़े लूजर है। इसको आप एज ए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एंटरटेनमेंट कि रखिए। इसे क्रिकेट से मत जोड़िए। तो मैं आता हूं वापस क्रिकेट पे, क्योंकि कुछ फैक्चुअल चीजों की बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि ग्रूमिंग यंग टैलेंट, इन दो टीम्स ने, एमआई और सीएसके ने कुछ बेहतरीन टैलेंट ग्रूम किया है, तो वो फैक्चुअल है। और उसमें एमआई की तरफ से जो सबसे दो जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, वो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के नाम उसमें शामिल हैं। दो बेहतरीन खिलाड़ी जो अब उभर के आए हैं एक टॉप लेवल पे, बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार्स हैं। ये दोनों एमआई की देन है। फिर सीएसके की भी अगर हम उनके नाम लिए जाए, जो यंग टैलेंट को उन्होंने ग्रूम किया है और जो अच्छा किक इन किया है, ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने पहले मैच में 92 मारे थे, राजवर्धन हंगरगेकर जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेट लिए, और निशांत सिंधु। Again, where MI is concerned, Tilak Verma has shaped up very well last season. He was in great form. Then Ritik Shaukin, Ishan Kishan, of course, is our new superstar, young talent, and of course, then Nehal Vadera. Now, my point, CS, is that this whole thing about spotting young talent, about grooming them, it started more or less in football in the time of Arsene Wenger, who was the coach for 22 years for Arsenal. And it was his Absolutely. idea that there should be a talent academy. They should encourage youngsters, groom them, scout proper young talent, groom them, and then introduce them in practice matches with the seniors. That became the assembly line, and it is a very successful assembly line, not only now for Arsenal, but most teams have their new academies. So, what are your thoughts on that? I think when IPL जब बना था, if you remember, there was a lot of talks about their academies and also the backup plans, and also within their structure, the leagues they were proposing. But apart from Tamil Nadu Cricket Association, you have to give credit to Srinivasan for that. Apart from that, I think कहीं पर ज्यादा cricket evolve नहीं हुई है. मुंबई has its own power centers. वहाँ की जो अपनी लीग है, टाइम शील्ड हो, जो लीग्स है, जो उनकी समर लीग्स है, वो एक अलग तरह से उनका एक अपना स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उनके उनकी उनकी लीग्स का। लेकिन ओवरऑल आई थिंक तमिलनाडु हैज consciously they have focused on making players, or getting players for the different leagues. They have been playing outside India also. They have been playing Tamil Nadu Cricket League also, Premier League, Tamil Nadu Premier League, and which is as good or as lucrative as IPL. Obviously, the money is not like 10 crores or 15, but the kind of money the local players are getting there is huge in that terms. And they are also streaming live on the prime channels. So in a way, I think apart from IPL, from the Tamil Nadu, और किसी टीम ने, पंजाब ने, दिल्ली ने, किसी ने कुछ नहीं किया। ये तो एक नाटक कर रहे हैं। तो ये जो अपने प्लेयर्स को लेते हैं भी 20-25 को, उनको क्या करते हैं, डग आउट में बिठा दिया। प्लेयर्स थक गए। आई रिमेम्बर आई मेट कपल ऑफ Delhi players who were there in their as a net bowler in the dugout, not in the dugout, but in the team structure. So they have left this team and they are doing nothing. They have been professional with other Air India or other places. So they were telling me कि भैया वहाँ कुछ नहीं होता है, आप जाइए बॉल उनको करते रहिए, nobody is bothered whether I am good or bad. If I am not in the in that particular list of 16 or something, nobody bothers about me. How much I have been practicing, how much I have putting in my effort. So उन लोगों का जो फोकस है उसी 10, 11, 12 प्लेयर्स पे है, and maximum that 16. Beyond that, if you have a team of say 25 or 30, nobody is bothered आप क्या कर रहे हो। आप सिर्फ आते हो, पानी पिलाते हो, बॉल करते हो, फील्डिंग करते हो और घर चले जाते हो। सो जो ग्रूम करने की जो आपने कॉन्सेप्ट का, वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल खराब है। लेकिन हाँ, मुंबई बिकॉज ऑफ देयर ओन गुड स्ट्रक्चर, and Tamil Nadu because of their commercial interest, and Srinivasan in particular, he is very interested in cricket. He is the one who has funded so much to the given fund to so much of cricketers in the past and also now also. But apart from that, everybody has failed in that direction. But yes,
One player who has surprised me from IPL. I don't think IPL has given us any hero. It was tits and bits. Initially, Yusuf Pathan, if you remember, he became the star. Or David Warner for Australia. Yes, he has become big. He's been captaining also. But overall, I think I'm most impressed with Hardik Pandya. I never thought he's going to Yes. be that great, as a Yes. all-rounder. But yes, he has emerged, and especially after that good knock of 3 4 years back when he played that 60 odd runs knock against Pakistan. I think his confidence level has gone up. He has realized his potential. And when he was even not bowling, he was injured. As a batsman, he could have walked into any other team. But as a leader, he's also showing that potential. So I think apart from that, it's only the tits and bits. प्लेयर्स कम कहीं पर अच्छा करते हैं एक आधे मैच में T20 में या वनडे में उसके बाद फिर से बाहर हो जाते हैं इफ यू आर सच ए ग्रेट टैलेंट तो आपको हर फॉर्मेट खेलना पड़ेगा अच्छा खेलना पड़ेगा एंड दैट्स वेयर आई गिव क्रेडिट टू शुभमन गिल ही इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ दिस he is a product of under 19 India A, and he has been doing consistently well in all the three formats. Rest all are tits and bits players. They have to prove themselves, in the coming years or maybe in this particular IPL. आपने हार्दिक पांड्या का नाम लिया तो हार्दिक पांड्या पे थोड़ी और बातचीत करते हैं और Yes. ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हार्दिक पांड्या इतने सक्सेसफुल कप्तान कैसे बने। तो इससे पहले कि उस पे बात करें हम, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने साइन किया था 2015 में उसके ऑक्शन में केवल 10 लाख रुपए पे। अब वो करोड़ों में बात करते हैं। जब उनके कंसिस्टेंटली उनका आईपीएल करियर देखिए तो पहले वो एक बैट्समैन के रूप में ज्यादा थे, फिर उन्होंने अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव की, अब वो एक मकाम पे पहुंचे हैं। हालांकि उनकी एक सर्जरी भी हुई थी इम्पोर्टेंट, लेकिन एक कंसिस्टेंटली 130 135 क्लिक्स पे बॉलिंग वो कर लेते हैं। बैटिंग की जहां तक बात आती है, ऑन हिज डे ही कैन टेयर एनी बॉलिंग अपार्ट। बिसाइड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट व्हेन गुजरात टाइटंस वाज बीइंग फॉर्म्ड, he had gone through one or two seasons which were pretty dull with MI, and possibly he was looking for a way out, and that was like a God-sent opportunity. But the way he galvanized a young team and he showed leadership skills, that now his name is being taken as a possible India captain in one of the white ball formats. So that is dramatic, and it has come possibly from within, but he's emerged as a massive superstar. Jasprit Bumrah could have been another big name, but constantly, because of his action and the fact that he's almost 1 year out because of a back surgery. So let's not concentrate on Bumrah. Let's talk about Hardik. Yes. Hardik, as I told you initially when I saw him first time, I never thought he's going to be this big. To be true, because he was a very mediocre bowler and a okay decent kind of batsman, late middle order who could hit a few sixes. But overall, he never looked to me as somebody who's a thinking cricketer. But yes, over the years, he has managed to, come out of that shell probably because I have not watched him so much lately. But yes, what has happened is probably that, जब उसको जो owners का initially from the Mukesh Ambani family and then later on obviously the Shah family, the great Shahs of India. तो वहां से जब कॉन्फिडेंस मिला तो मुझे लगता है कि एज ए कप्तान ही हैज रियलाइज्ड ही हैज सो मच ऑफ पोटेंशियल एंड ही जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द परफॉर्मेंसेस। तो वहां पर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी इंजरीज को भी मैनेज अच्छा करना शुरू किया। व्हेन ही वाज इंजर्ड nobody thought that he could come back and bowl so early after that world cup। so उन्होंने उसको मैनेज किया और जब इनको कॉन्फिडेंस दिया कप्तान बनाया तो आई थिंक ही हैज emerged out of that shell। He was never considered as a part of the think tank in any of the teams, whether it was India or India A before that, and then MI also can. But as a leader there, and also the last year in MI, I think that's where he got that due, which was obviously he has earned that. It's not like कि किसी ने कोई इन पर एहसान किया, but ये वहां से आए और आज he is looking very different. He's more like, I would say in his approach, he's more like Dhoni, but he's very unlike Dhoni also. क्योंकि ये chances ज्यादा लेते हैं। धोनी I never thought वैसे मैं कहूँ कि जो बोलते थे उनको aggressive leader, ऐसा नहीं था। धोनी वैसे very calculative guy, उनको अपनी ability पे बहुत सा विश्वास था। उन्हें मालूम था कि मैं लास्ट में यहाँ तक खींच जाऊंगा और उनके साथ जो टीम रही, जो कोर रहा, वो बहुत स्ट्रांग रहा। तो धोनी was that way very fortunate
टू हैव ए कोर जो इनको जिता भी रहे थे। बट पंड्या के साथ जब ये कप्तान और हमारे व्हाइट बॉल कैप्टन भी इंडिया के बन रहे हैं, पंड्या हैज ए डिफरेंट अप्रोच, ही इज एग्रेसिव एंड ही इज वेरी मच श्योर अबाउट कि दूसरे प्लेयर से मैं क्या कुछ ले सकता हूँ। कुछ एक ऐसे प्लेयर्स हैं, फ्रिंज प्लेयर्स, जिनको ये खिलाते हैं बिठाते हैं, जैसे फॉर दैट मैटर शुभमन गिल को इन्होंने काफी कॉन्फिडेंस दिया है। इन्होंने ईशान किशन को जब खिलाया तो सडनली उसने डबल सेंचुरी कर दिया। तो ये जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सा काम ऐसा होता है जो ड्रेसिंग रूम में आपको करना होता है। आई रिमेम्बर 2006 सीरीज इन ट्राई सीरीज इन मलेशिया, कुआलालंपुर, व्हेन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज वर प्लेइंग। तो इनकी जो टीम मीटिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के, बुकानन वाज ए गुड कोच और उनको बड़ा स्टैटिस्टिक अपना इस बारे में कि जो जो उनकी अप्रोच थी, उनका जो जिस तरह का टैक्टिकल जो उनका खेल था, उसमें बहुत डिफरेंट मानते थे। सो आई वेंट टू स्विमिंग पूल वन डे कि थोड़ा स्विमिंग करके आते। आई वाज स्टेइंग इन द टीम होटल, सो आई जस्ट सॉ कि वहाँ स्विमिंग पूल में तो क्लास चल रही है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, एक एक दो दो करके आ रहे हैं, उनके उनको स्विमिंग भी करवा रहे हैं साथ में चलते हुए, कुछ टैक्टिक्स डिस्कस हो रही है बाहर सोफे में, जो वो एक बैठे हुए थे वहां पर वो सब कुछ चल रहा है इन द स्विमिंग कॉस्ट्यूम। सो आई वाज वेरी, मुझे लगा कि ये डिफरेंट अप्रोच है। फिर उसके बाद शाम को कहीं पर आपको बियर पीते हुए भी, आपको पब में भी करते हुए मिल जाएंगे विद द फ्रेंच प्लेयर्स, किसी यंग प्लेयर्स को लेकर के घूम रहे। सो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच। सो आई थिंक हार्दिक इज ट्राइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम रोहित शर्मा एज वेल एज धोनी। तो कितना सक्सेस होंगे कितना नहीं पता नहीं, लेकिन फिलहाल द काइंड ऑफ बैकिंग जो बीसीसीआई सेक्रेटरी से है, जो टीम ओनर से है, और जिस तरह के इनको जो भावी कप्तान भी देख रहे हैं, मैं तो तीनों फॉर्मेट में मुझे लग रहा है जिस तरह की बैकिंग है, तीनों फॉर्मेट में आपके कप्तान बनने वाले हैं। और अपना कॉन्फिडेंस और जिस तरह की बॉलिंग को इन्होंने इंप्रूव किया, जो बॉलिंग इनकी 130 के आसपास की आपको लगती थी, सडनली 135, बट वेरी इफेक्टिव 135, जिसमें आपको बाउंस करते हुए भी दिख रहे हैं, आपको जो कहते हैं शॉर्ट पिच डिलीवरीज आपके चिन हाइट्स पर लाते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत आसानी से नहीं आता, और आई थिंक a lot of hard work is going, behind all these things. हार्दिक के बारे में मेरा एक पर्सनल विचार ये भी है कि ये, जब आपको याद होगा, करण जौहर के शो पर आए थे ये और केएल राहुल, और इन्होंने अपनी I जाती, wanted to say this. हाँ, और I एक्स्ट्रा wanted to करिकुलर mention that. हाँ. एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने जिक्र किया, फिर उन पे बैन लगाया गया, और बहुत विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि इन्होंने एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको ऐसे कभी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसमें ना जाके ये जरूर कहना चाहूंगा, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो वो बैन का टाइम था इनके ऊपर, खासतौर से जब हार्दिक ने काफी उसके बारे में कहा कि मैंने पागलों की तरह प्रैक्टिस किया, मेरे दिमाग पे बहुत असर आया, केएल पे भी था, Absolutely. लेकिन उसके बाद ये दोनों जब वापस लौटे, they were changed people, they were changed men, and that ban seems to have helped them more than anything else. I think that was the time जो make or break होता है, and Hardik probably got it, in a very positive sense. He worked hard on his game and especially on his bowling, which was a weaker link, I would say. I always thought he was a better batsman than a bowler. But right now, he's almost kind of 50-50. Rather, sometimes he bowls so well on certain kind of pitches that, it is difficult to face a bowler like him. So in a way, I think usko positive liya. The kind of player, the kind of person he is personally, I think उस इंटरव्यू में दिखा था कि वो बिंदास है, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ा, which was to me was very surprising. आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? Because I'm bit conservative in my approach. But overall, I think इन्होंने दिखाया इनकी फैमिली भी बिंदास है, ये भी he could talk about anything. उसको जो कंडेम किया गया, तो दैट वाज द टाइम आई थिंक वो एज ए पर्सन मैच्योर हुए, उनको समझ आ गया बाहर कुछ नहीं बोलना है, आप करिए जो मर्जी लेकिन बोलना कम है। और एज ए मेंटली आई वुड से कि ही हैज emerged वेरी स्ट्रांग आफ्टर दैट। और वो लीडरशिप क्वालिटीज कहाँ से आई, दैट इज ऑलवेज इन्वॉल्व। आई नेवर थिंक कि किसी को भी आप लीडरशिप सिखा सकते हो, इट इज ऑलवेज दैट इनबॉर्न टैलेंट, जो सचिन में कभी नहीं था, फॉर दैट मैटर कई प्लेयरों में नहीं था। बट यस, दे वर सक्सेसफुल कैप्टन्स, सक्सेसफुल प्लेयर्स, बट हार्दिक में आई थिंक लीडरशिप राइट फ्रॉम द बिगनिंग था। मे बी प्लेयर्स वो उसके बाद ज्यादा हार्ड वर्क से बने। थिंक टैंक के बारे में जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक इन टीम्स, जो सक्सेसफुल टीम्स होती हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक होता है। अब थिंक टैंक क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि कुछ
महान खिलाड़ी उसके कोर ग्रुप में होते हैं, वो असिस्ट करते हैं, वो थॉट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली मेंटल कंडीशनिंग आजकल इसको लेके भी बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन है कि मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जब ये कोविड था, पैंडेमिक, लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई और उसमें काफ़ी मदद इन लोगों को मिला है। कपिल देव ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अब जो सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो या जो असिस्ट किया जाता है, समय होता तो मैं शायद 300-400 विकेट और ले सकता था। लेकिन सीएस, जब कई महान खिलाड़ियों के नाम अब उसके उस थिंक टैंक में होते हैं, जैसे संगाकारा है, महिला जयवर्धन है, ब्रायन लारा है और बड़े ऐसे खिलाड़ी, रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली एक ही टीम में है मेंटोर एंड कोच की हैसियत से, कितना फायदा होता है प्लेयर्स को? और ये जो थिंक टैंक होता है वो असिस्ट कैसे करता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आप और हम दोनों ही जानते हैं कि जो सेट प्लेयर होता है, दे ऑलरेडी नो व्हाट देयर जॉब इज। पहली बात, किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि थिंक टैंक जो है वो ऐसा है कि कोई किसी की देन है, कुछ है। इट्स अबाउट योर डीप पॉकेट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको मान लीजिए खर्चने के लिए आपके पास 100 करोड़ है, जो कि प्लेयर्स का पर्स की बात है, तो ये जो थिंक टैंक और सो कॉल्ड ट्रेनर्स और ये सब लोग हैं, ये इसके बाहर की चीज है। सो मुंबई इंडियंस नेवर हैड दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। द मोमेंट सचिन गॉट रिटायर्ड, वो उनके थिंक टैंक हो गए। द मोमेंट महिला जयवर्धन ने उनकी टीम छोड़ी, वो उनके असिस्टेंट कोच हो गए। द मोमेंट कोई भी जाता है, वो उनका, फॉर दैट मैटर कुंबले जब छोड़े, वो वहां थिंक टैंक में पहुंच गए। तो बिकॉज ऑफ द डीप पॉकेट्स ऑफ द कंपनी, उनका पैसा वहां उनके उनके पर्स में नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही सेम थिंग हैपेंड विद इंडिया सीमेंट्स। इट्स अ बिग कंपनी, तो वहां पर भी खैर उतना बड़ा थिंक टैंक नहीं है, लेकिन जो भी उनके कोर प्लेयर्स थे, या फ्लेमिंग फॉर दैट मैटर, जब खेलना छोड़ा उन्होंने, वो कोच बन गए। तो ऐसे में जो आपकी डीप पॉकेट्स है, वो कितना अलाउ करती है? फॉर दैट मैटर दिल्ली में नहीं है, रिकी पॉन्टिंग है, आप दादा है, वो भी जब जब टीम शिफ्ट हुई एक से दूसरे, जब वो क्राइसिस में चल रहे थे, बहुत कम प्लेयर्स को ले रहे थे। सेम थिंग हैपेंड विद पंजाब और राजस्थान, वो अपना पूरा पर्स भी नहीं खर्चते। तो ये जो जो कहते हैं ना कि प्लेयर्स कितने हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, आई कैन ओनली से कि वो कंट्रीब्यूट ये करते हैं कि दे कैन प्रिपेयर यू मेंटली, कई बार प्लेयर्स को। बट टॉकिंग अबाउट इंडियन प्लेयर्स एंड स्पेशली दोज हु आर कमिंग फ्रॉम ए बहुत नीचे के तबके से आ रहे हैं, उन प्लेयर्स को आप ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते, तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आप किसी कॉन्वेंट को पढ़े हुए को तो महिला जयवर्धन ने सिखा पाएंगे, लेकिन महिला और बाकी प्लेयर्स की वही कॉन्वर्सेशन की प्रॉब्लम है जो ग्रेग चैपल और हमारे मुनाफ पटेल की थी। मुनाफ पटेल को बोलते थे, वो हंस के निकल जाते थे, उनको पता ही नहीं था। बिकॉज मीन हमने तो वो भी वक्त देखे हैं कि आप फॉर दैट मैटर वीरेंद्र सहवाग को भी नहीं, वो उनका एक अलग आंकड़ा चलता था 36 का। तो ये जो थिंक टैंक है ना, ये उन पे काम करता है। शुभमन गिल इज अ स्मार्ट क्रिकेटर फ्रॉम द कॉन्वेंट बैकग्राउंड, उनको आप समझाओगे, पृथ्वी शॉ को समझाओगे, वो समझ जाएंगे। रिकी पॉन्टिंग की, पर आम एक प्लेयर को, किसी को जो नीचे से आ रहा होगा, उसको ही समझाएंगे, वो कहेंगे ठीक है बाबा, बोलता रहे तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा, तेरी भाषा मुझे नहीं समझ आनी, मेरी तुम्हें नहीं। तो दिस इज अबाउट डीप पॉकेट्स एंड ऑल्सो एक आपका माइट दिखाता है। ये टीम्स का माइट दिखाता है कि ये देखिए मुंबई इंडियंस के उसमें सभी लाइन में लगे हुए हैं, हर आदमी दरबारी हो गया हुआ है। तो क्रिकेट की कोई बात नहीं करता। और दूसरी चीज, एक और चीज इंपॉर्टेंट रखना, क्रिकेट में एक नया चलन आया है ये आईपीएल में। सबसे पहले जो जो कहते थे टाइगर पटौदी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो और बिशन सिंह बेदी, दो ही ऐसे प्लेयर थे जो बिकते नहीं थे। ललित मोदी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं बिकेंगे नहीं, हम आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं आएंगे। लेकिन लेटर ऑन, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज जो लोग अंदर बताते हैं, टाइगर पटौदी भी आ गए और अच्छे हैंडसम अमाउंट में गवर्निंग काउंसिल के बन गए। बिशन सिंह बेदी रिमेन द ओनली प्लेयर जो आज तक नहीं आया, ना वो आएंगे कभी इस उसमें, द काइंड ऑफ पर्सन ही। बाकी सब क्या है, आप ताकि क्रिटिसाइज ना करें, क्रिकेट में जितना खराबियां हो रही है, आप बर्बाद कर रहे हैं क्रिकेट को, आपको पैसा ला रहे हैं, आप चीयर लीडर्स ला रहे हैं, आप बहुत कुछ बैटिंग हो रही है, कई चीजें ऐसी, कहते हैं ना अंडर वैली में बहुत कुछ है। जो उस पेंडोरा बॉक्स को खोलोगे तो यहाँ पर हम और आप कई दिन बात करेंगे। तो उसको भी चुप करवाने के लिए सभी प्लेयर्स का मुंह बंद कर दिया जाता है। फिर वो करते हैं वही बात जो होता है ना, डायस्पोरा जो इंडिया का बाहर जाता है और हमारे लीडर जाते हैं और कहते हैं वो सब। तो ऐसे यहाँ पर आईपीएल वो भी सब कुछ। सो दैट इज ऑल्सो ए वे टू कीप देम साइलेंट एंड ऑल्सो टू cheer for the IPL. Okay, we'll do a wrap now because the IPL season has just started. So CS and I will be back on more episodes of the IPL
try and get under the skin of the game, as they say. Very, very strong viewpoints have emerged on this show. We will continue with that trend. And in the end wrap, I would just want to say that when you look at the two most successful teams of IPL, then MI and CSK feature among the two top teams for the titles that they have won, for the times that they've had a final playoff, for their contribution where young talent is concerned. And then again, it all boils down to leadership, grooming, core team, think tank, and like CS says, that funds are very, very important. And there, CSK possibly also MI, they played a very, very important role in investing money into their team, into the players, and that is where they reap such rich dividends. And that is a point to think about where the other teams are concerned, even as IPL is set to expand more and more. Thanks for watching No Filter Cricket. We'll be back with more. And thank you very much, CS. Always a pleasure. Thank you.